Hello dear friends, once again I welcome this YouTube channel. Once again I welcome to all in this YouTube channel Brijesh Kumar Vishwa. Welcome back to all of you in this YouTube channel Brijesh विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स और इसके पहले वीडियो हमने बना रखा था चैप्टर 1 के बारे में। आई होप आप लोग उस वीडियो को देखे जरूर होंगे। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। आई हैव गिवन देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। ओके, डोंट फॉरगेट फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। Yesterday means previous video. In previous video I have talked about scope of physics. What is scope of physics in the physics, है ना। फिजिक्स में स्कोप क्या होता है ये। तो इफ़ वी लुक इन आवर सराउंडिंग, अगर हमारे आसपास हम देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ मैटर्स पार्टिकल्स प्रेजेंट सराउंडिंग अस। सम ऑफ देम आर टू मच स्मॉल, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं टू स्मॉल मीन्स माइक्रो पार्टिकल होते हैं। सम ऑफ देम आर नॉट विजिबल विथ आवर नेक्ड आइज, देन वी कैन से दोज आर ऑल द माइक्रो पार्टिकल। सेम एज ऐसे ही सम ऑफ देम आर द विजिबल टू आवर नेक्ड आइज, दोज आर ऑल द कॉल्ड मैक्रो पार्टिकल। उन सबको हम क्या कहते हैं, मैक्रो पार्टिकल कहते हैं ये। सो इन दिस सेम वे वी कैन से इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स इट हैविंग द basically from micro particle from the micro particle to macro particle, है ना। इसके बहुत ज़्यादा इसके स्कोप हमको दिखाई देते हैं ये। So physics is broadly divided into two types of based on its scope, that is classical physics and mechanics, classical physics and modern physics, है ना। We talk about this classical physics. In this physics we deal with the macroscopic phenomena and modern physics we study about the microscopic phenomena. यहाँ तो हमारे आपके लिए जो है हम आपको समझा रहे थे बहुत छोटी सी बात है, बट when you will go to study in detail you will find lots of amounts of theories in the classical and modern physics. Okay, so if we talk about macro domain, चूँकि हम क्लासिकल फिजिक्स में मैक्रो पार्टिकल के बारे में ही हम डील करते हैं, पढ़ते हैं इसमें। सो दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट द मैक्रो स्कोपिक डोमेन। इन प्रीवियस वीडियो आल्सो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, अगेन आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। ओके, सो अगर इसमें हम बात करें तो इट इंक्लूड्स फिनोमिना एट लार्ज scale like laboratory, terrestrial and astronomical. It includes following subjects like we can say mechanics, electrodynamics, optics and thermodynamics. These are all the parts of, only not these parts of the classical physics, there are lots amounts of parts of having the macro domains, है ना। macro domains में और भी बहुत सारे part होते हैं ये। So if we talk about mechanics, yesterday as I have discussed about it, so I will not go in detail, so just only overview I will give you. Next we will talk about micro is domain. Yes, micro domain. What is micro? Micro means the particle which are not visible with our naked eyes, those are all the micro scopic particle. Okay. But in this phenomena we deal with the some terminology which we should know about this term. Okay, the first one is the hypothesis, next one is the axiom, next one is the model, next one is the assumption. Means there are four main term which we have to we should know about this. The first one is the hypothesis. Hypothesis means what? Hypothesis is the supposition without assuming that it is true. तो क्या ट्रू है क्या नहीं ट्रू है ना, उसके बारे में हम सपोज करते हैं। इट मे बी और नॉट बी, ये जो है प्रूव्ड भी हो सकता है, बट इवन इट कैन बी वेरीफाइड एज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं है ना, वैसे वैसे किसी भी किसी भी चीज़ को हम वेरीफाइड भी कर सकते हैं इन द फिजिक्स इफ पॉसिबल, है ना। एक्सियम है, मॉडल है, अजम्पशन है, इसके बारे में भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ also in the previous video I have discussed about the fundamental forces in the nature, है ना। फोर फोर्सेस होते हैं, that is gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, weak nuclear force, है ना। इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो, बार बार हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं ना, उस वीडियो को आप देखिए आप।
जब देखोगे समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें होती हैं फिजिक्स में, क्लास 11th में, है ना। बेसिकली क्लास 11th में क्या क्या हमको पढ़ना है। And whatever the topic I talked in every lecture, you should note down in your notebook. Don't forget for the note down, writing in your notebook, okay? Because a note down is the, we can say in the physics is the power, है ना, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से हम समझ पाते हैं फिजिक्स के बारे में। नहीं तो फिर अगर लेक्चर ही सुनना है तो आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटबुक बनाओगे तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा वो, ठीक है ना। और हाँ, ये वीडियो जो है हम रेगुलर अब बनाएंगे, जो है इंटरमीडिएट के लिए भी बनाते हैं, है ना, और 10th 9th 10th के लिए भी बनाते हैं। तो प्लीज़ यार जो है इतना मेहनत जब आपके लिए हम कर रहे हैं, हम खुद अपनी भी नॉलेज के लिए करते हैं, आपकी भी नॉलेज के लिए करते हैं, तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब तो कर ही देंगे हमको जहाँ तक मालूम है। प्लीज़ शेयर एंड आल्सो लाइक दैट ईच एंड एवरी वीडियो वाट एवर आई मेड, ओके। जो कुछ मैं बना चुका हूँ, वाट एवर आई हैव मेड दैट वीडियो, प्लीज़ शेयर दैट, है ना, आप शेयर कीजिए उसे। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा हमको भी क्या कर सकते हैं, आप ही से जो है हमको भी एक सीख मिलती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब हमको लगता है कि हम लग रहा है अब थोड़ा अच्छा हम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, जो है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मेरा बेकार नहीं जा रहा है। बाकी जो बच्चे हैं वो हमसे पढ़ करके काफ़ी अच्छा सा वो नॉलेज है वो ले पा रहे हैं, ओके। सो आई थिंक यू विल डू दैट, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस एज आई हैव डिस्कस ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो। यूनिफिकेशन, है ना, यूनिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द, इन दिस यूनिफिकेशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंगल वे। हम एक सिंगल वे से ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करते हैं वाट एवर द लार्ज अमाउंट ऑफ थियरीज लॉज हैज़ बीन गिवन इन द फिजिक्स। वी वांट टू टॉक ओनली वन वे, हम केवल एक तरीके से बात करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक ईजी दैट ऑल द लॉट्स ऑफ द लॉज, है ना, उन सभी लॉज को हम क्या करना चाहते हैं, हम ईजी बनाना चाहते हैं। सो देयर आर द सम आल्सो वी कैन से फिजिकिस्ट आल्सो हेल्प टू मेकिंग ईजी टू अंडरस्टैंडिंग फॉर द एस्पिरेंट एंड फॉर द स्टूडेंट, है ना। तो ये जो कुछ फिजिकिस्ट हैं इन्होंने काफ़ी ईजी वे से जो है समझाया, एंड आल्सो दे यूनिफाइड some forces which we are going to start, okay. So I think first one is the only one, what you can say, Sir Isaac Newton. He is the very what we can say outstanding, dynamic, energetic, है ना, सर आइजक न्यूटन फिजिकिस्ट। वो क्या थे, वो फिजिकिस्ट सर आइजक न्यूटन थे। 1687 में उन्होंने यूनिफाइड किया सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स, है ना। उन्होंने क्या किया, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल मैकेनिक्स को यूनिफाइड किया, है ना। क्योंकि जो है पहले के लोगों के बीच में जो है ये एक मतलब कि एक मान के चले थे लोग, जो है लोगों के दिमाग में था कि ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं ये अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होते हैं ये अलग होते हैं। बट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट सम प्रूविंग थियरीज, है ना, सर आइजक न्यूटन प्रूव दैट, उन्होंने ये प्रूव कर दिया, एंड आफ्टर दैट वेरीफाइड दैट दीज आर ऑल नथिंग बट दीज आर ऑल द वन वे, ये सभी एक ही चीज़ें होती हैं, एंड दे वी यूनिफाइड दैट, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज कम, नेक्स्ट आते हैं इसमें हैंस क्रिश्चियन और स्टेट एंड एम फैराडे। मतलब ओरेस्टेड और एम फैराडे ये दो लोगों थे, है ना। ये जो ओरेस्टेड थे इन्होंने 1820 में यूनिफाइड किया इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फिनोमेना को, और एम फैराडे ने 1830 में इन्होंने बताया मैग्नेटिक फिनोमेना को। यानी कि पहले के लोग क्या थे, यानी कि 1820 से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग थे फिजिक्स को पढ़ने वाले, साइंस को पढ़ने वाले, उन लोगों को मानना था कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना बोथ आर द डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब ओरेस्टेड और एम फैराडे ने इसके बारे में स्टडी किया, दे मेक वन वे, फिर उन्होंने उसे यूनिफाइड कर दिया, है ना। 1830 में, 1830 से 1830 से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग थे फिजिक्स को पढ़ने वाले, साइंस को पढ़ने वाले, उन लोगों को मानना था कि इलेक्ट्रिक फिनोमेना और मैग्नेटिक फिनोमेना बोथ आर द डिफरेंट, ये दोनों के
है ना, दे यूनिफाइड दैट बोथ फिनोमिना, है ना, उन दोनों फिनोमिना को उन्होंने यूनिफाइड किया एंड थ्रू द एक्सपेरिमेंट आल्सो दे वेरीफाइड दैट। ओके, सो दैट्स व्हाई इन दिस टू फिनोमिना मींस इलेक्ट्रिक फिनोमिना एंड मैग्नेटिक फिनोमिना, दिस टुगेदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसलिए यहाँ से एक नई टॉपिक निकल के आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिन्होंने अच्छे से इन्होंने क्या किया, यूनिफाइड किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये भी काफ़ी एक डायनेमिक एनर्जेटिक हम कह सकते हैं, जेसी मैक्सवेल, है ना, जेसी मैक्सवेल 1873, है ना, जेसी मैक्सवेल ने 1873 में इन्होंने यूनिफाई किया था, क्या यूनिफाई किया था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। ये तीन चीज़ों की बात हम कर रहे हैं, किसकी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और किसकी बात किए हैं, ऑप्टिक्स। ये तीन चीज़, ये तीनों को इन्होंने, तीन फिनोमिना को इन्होंने यूनिफाइड करके इन्होंने एक न्यू फिनोमिना दिया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इन्होंने 1873 में इसे यूनिफाइड किया था। इसके पहले हमने बात किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें इलेक्ट्रिक फिनोमिना, मैग्नेटिक फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं। बट इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम क्या बात करते हैं, हम तीन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द एस ग्लॉसो, अब्दुल सलाम एंड स्टीवन विनवर्ड। ये थ्री साइंटिस्ट हैं। 1979 में इन्होंने आइडियाज़ दिया था ऑफ इलेक्ट्रो वीक विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स के एक कॉम्बिनेशन ये होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने इसके बारे में क्या दिया था, अपना आइडिया दिया था ये। नेक्स्ट है सी रूबिया और साइमन वेंडर मील। ये दो साइंटिस्ट थे। 1984 में इन्होंने वेरीफाइड किया थियरीज ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रो वीक फोर्स को इन्होंने वेरीफाई किया था ये। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो फिर आप क्या कीजिए, इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ना, इन सभी थियरीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने हिंट आपको दिया है, डेफिनेशन समझाया है। एंड व्हाट आर दीज फिनोमिना हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, तो आप उस वीडियो को देखिए आप। कंजर्व्ड क्वांटिटीज, है ना, नेक्स्ट टॉपिक आवर इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड कंजर्व्ड, है ना, कंजर्व्ड क्वांटिटीज। व्हाट इज कंजर्व्ड क्वांटिटीज, डू यू नो? ये आपको मालूम है, कंजर्व क्वांटिटी मीन्स एज द वर्ड गिवेन, है ना, कंजर्व, जैसा कि यहाँ पे कंजर्व का मीनिंग दिया है, इन द फिजिक्स गिव लॉज टू समराइज द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेनामिना ऑकरिंग इन द यूनिवर्स। इस हमारे यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना होते रहते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते रहते हैं इन द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज़ फिजिक्स, है ना। ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कस कर रही हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ये समय के साथ जो है ये अनचेंज्ड होता है। कांस्टेंट मीन्स व्हाट, अनचेंज्ड, दैट नेवर चेंज, जो कोई कभी चेंज नहीं होता है, आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। उसी को तो हम कहते हैं कंजर्व क्वांटिटीज। मीन्स क्या हुआ, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो सब के सब कांस्टेंट होते हैं, दे नेवर चेंज, जो कभी चेंज नहीं होते हैं। दोज आर ऑल कंजर्व क्वांटिटी। क्या कहते हैं, कंजर्व क्वांटिटी कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात अगर हम करें, फॉर ए बॉडी अंडर एनर्जी, अंडर एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी, हम लोगों की बॉडी है, कोई सबस्टेंस ले लो, है ना, उसके ऊपर कोई एक हम एक्सटर्नल फोर्स अगर लगाते हैं, लाइक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज ओवर टाइम, ये दोनों उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होंगी वो चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ जो है ना। जब इसका एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तब जाकर के हमको पता लगता है, जैसे कोई भी बॉल है ना, उस बॉल को अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर उसे ड्रॉप करेंगे, सो अब इफ़ वी थ्रो दैट बॉल अपवर्ड डायरेक्शन, आफ्टर सम टाइम दैट बॉल विल बी व्हाट वी कैन से,
स्टे इन द एयर, वो स्टे इंस्टेंट टाइम है ना, इंस्टेंट टाइम के लिए वो रुकेगा, स्टॉप होगा वो, उसके बाद फिर वो नीचे ड्रॉप होगा। तो उस समय तो जब हाई पीक पे होता है वो, उस समय तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है, लेकिन ये कभी भी हम मानते नहीं हैं कि वो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो, जो कि जीरो से ग्रेटर होता है। बट आफ्टर फॉलिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस है ना, जब सरफेस से वो स्ट्राइक करता है, देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट रहती हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती हैं उसकी कांस्टेंट होती हैं ये, है ना, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर टुगेदर मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म्ड। कंजर्व क्वांटिटीज कैन बी स्केलर और वेक्टर, ये दोनों हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। इट वी इफ वी टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड दैट विल बी स्केलर, इफ वी टॉक अबाउट with direction that will be vector form. Okay, total linear momentum and total angular momentum also, these are all the remains constant, also the under these laws conservation laws भी study है ना, कंजर्वेशन लॉज के में ही हम ये दोनों लॉ कर रीड करते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं? कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉ इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज होते हैं ये क्या होते हैं? हाइपोथेसिस होते हैं ये। एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। हाइपोथेसिस ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ये मतलब कि इसको हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ प्रूवन है, ट्रूथ है कि नहीं है, हम इसे हम हाइपोथेटिकली क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। वी ट्राई टू प्रूव दैट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट विच कांट बी प्रूव्ड, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ये। दीज कैन बी वेरीफाइड थ्रू द एक्सपेरिमेंट, है ना। फिजिक्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, जिस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन आफ्टर दैट वी वेरीफाइड दैट, तो उसे हम वेरीफाइड करते हैं, तब उसके बारे में एक्चुअल में हम बताते हैं कि अपनी ओपिनियन एक्चुअल में व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, क्या चीज़ें एक्चुअल में हैपन हो रही हैं। तो ये कुछ यहाँ पे लॉज हैं, इसके कंजर्वेशन लॉज है यहाँ पे कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, we will talk about that. So let's begin about the law of conservation of energy. What is this? If we talk about this, according to this general law of conservation of energy, the energy is constant over time and convert from one form to another, which you have already studied in your lower class, in class 10th, जो कि आप class 10th में पहले ही पढ़ लिए हो। Any kinds of energy can't be destroyed nor can be create, न तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओनली दैट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे हम चेंज कर पाते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू होल यूनिवर्स, ये तो सबको मालूम है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। एंड फ्रॉम मीन्स आप कह सकते हो इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ हैं वो सब के सब क्या है, इन सब पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है। एंड इट इज़ बिलीव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो मानो आप फिर ना मानो, बट बाय एक्सपेरिमेंट ऑल द मीन्स मैक्सिमम ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो बिलीव दैट, physicists believe that in the universe whatever the energy those are all the remains, those are all the remains unchanged, वो कभी भी चेंज होती नहीं है वो सारी चीज़ें। under identical condition the nature produces systematic results at different time, ये तो मालूम है सबको। at different time any kinds of experiment if we find out their result they will be changed एट द टाइम, है ना। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे ये चेंज होती रहती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग ऑफ ए बॉल फ्रॉम एट सम हाइट, है ना, कुछ हाइट से कोई अगर बॉल है, अगर वो हम उसको ड्रॉप करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, देयर पोटेंशियल एनर्जी कांट बी जीरो, जीरो तो हो नहीं सकता है, देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी लेट्स मोर देन जीरो, वो जो होगा मोर देन जीरो ही होगा, है ना। किसी भी फ्रीली फॉलिंग जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो से ग्रेटर ही होती है, क्यों? क्योंकि जीरो हो नहीं सकती है।
तो आफ्टर सम टाइम मीन्स आफ्टर चेंजिंग द टाइम, है ना, कुछ समय बाद, 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, मतलब जो भी टाइम होगा, आफ्टर सम टाइम इफ द बॉडी दैट विल बी स्ट्राइक द सरफेस एंड देयर विल बी सम एनर्जी दैट आई थिंक देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड heat energy, and also heat energy, that will be sound, there will be sound energy, means about this mechanical energy there will be. Okay, we will talk about this. Next one is the law of conservation of mass. What do you mean by this? This principle used in analysis of chemical reaction. A chemical reaction is basically a rearrangement of atom among different molecule, है ना, among atom in different molecule, like water, जैसे water H2O, हाइड्रोजन के एटम उसके अंदर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एटम उसके अंदर के मॉलिक्यूल, मीन्स वी कैन से वाटर्स इट्स केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल. If the total binding energy, if we talk about the total binding energy of water molecule, है ना, water molecule की binding energy के बारे में बात करें, of the reacting molecule is the less than the total binding energy of the product. वो क्या होगा, वो binding energy से वो less होगा वो. So these are all the things we have talked about it. If we talk about this law of conservation of mass, its example, the opposite is true for energy absorbing endothermic reaction. Since the atoms are merely rearranged but not destroyed, means you can say that mass of the reaction of the is the mass of the reaction is the same as the total mass of the product is a chemical reaction, है ना. Mass is related to energy which is given by the Albert Einstein. He was the very great dynamic energetic scientist. उन्होंने इक्वेशन दिया था E = mc², छोटा मुंह बड़ी बात. ठीक लिए, छोटा मुंह बड़ी बात हम कर दिए. मतलब क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन इस थियरी को प्रूव करने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लिए होंगे, कितना सोच विचार किए होंगे, हमें एक झटके में बता दिया आपको. E = mc², है ना. सो वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहाँ पे है. एंड दिस रिलेशन शो द एनर्जी एंड मास रिलेशन, एनर्जी और मास का रिलेशन ये शो करता है, विच इज़ प्रूवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा जो प्रूव किया गया था. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई टॉट यू, जो कि हमने आपको समझाया आपको समझ में ज़रूर आया होगा. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए. Hello dear friends, once again I welcome to all in this YouTube channel. Once again I welcome to all in this. Hello dear friends, once again I welcome to all in this YouTube channel.